بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ذکر لیگی نائب صدر مریم نواز کا، جو کہتی ہیں کہ ارکان اسمبلی فارورڈ بلاک بنا کر بیٹھے ہیں، عوام اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی خاطر عدم اعتماد کا رسک ضرور لینا چاہیے۔ یہ جنگ عوام اور اقتدار کے درمیان ہے، سب کو عوام کی آواز پر لبیک کہنا پڑے گا۔ عمران خان کسی ریاست کے بادشاہ نہیں، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ عمران خان نے 4 سال میں سوائے انتقام لینے کے اور کچھ نہیں کیا۔ تحریک عدم اعتماد پہ امید ہے کہ کامیابی ہوگی۔ یہ ایک ایسا رسک ہے جو لینا چاہیے، چاہے وہ اتحادی جماعتیں ہوں یا کوئی اور۔ میں تمام ان ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو جو اس وقت آلموسٹ فارورڈ بلاک بنا کے بیٹھے ہیں، میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، یہ اس وقت عوام اور اقتدار کے درمیان کی جنگ ہے۔ سب کو اس وقت عوام کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے۔ کس چینل کا منہ بند کریں گے؟ بند ہی کروانا ہے تو عمران خان صاحب کو اپنا اور اپنے وزراء کا منہ بند کرانا چاہیے۔ محسن بیگ صاحب جب آپ کے ساتھ تھے تب تو وہ بالکل اچھے تھے، جب انہوں نے آپ پر تنقید شروع کی تو آپ میں اتنا سا بھی ظرف نہیں تھا کہ آپ وہ تنقید برداشت کر سکے۔ مجھے تو آپ کی ذہنی حالت پہ عمران خان صاحب ترس آتا ہے۔ وہ سٹینڈرڈ جو آپ اپنی وائف کے لیے سیٹ کرتے ہیں وہ پھر آپ دوسروں پہ بھی اپلائی کریں۔ کون سی ایسی مخالف کی بیٹی، بہو، ماں، بہن آپ کے انتقام سے بچی ہے؟ تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں۔ یہ دنیا کا پہلا اور واحد پرائم منسٹر ہے جو بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس تک عوام کے خرچے پہ ہیلی کاپٹر میں آتا ہے۔ آپ کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی پرائسز بڑھتی ہیں، مہنگائی ہو جاتی ہے۔ آپ نے 4 سال سوائے انتقام لینے کے اور کچھ نہیں کیا۔ ہے اس کا کوئی جواب آپ کے پاس؟ عمران خان صاحب، آپ کسی ریاست کے بادشاہ نہیں ہیں، یہ عوام آپ کی رعایا نہیں ہے۔ اس کا خون پسینے کی کمائی جہاں چاہیں آپ صرف کریں، ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ لندن بھاگنے کی اجازت نہیں ملے گی اب۔ کل کا انتظار نہ کریں، اپوزیشن کل کے بجائے آج ہی عدم اعتماد لے آئے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے ایسا چیلنج دیا، کہا یہ پہلے کی طرح اس بار بھی ناکام ہوں گے۔ دعویٰ کیا کہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو عمران خان پر اعتماد پلس ہو جائے گا۔ اپوزیشن کے کئی ارکان وزیر اعظم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کل نہیں، آج ہی لے کر آئیں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد۔ وہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہوگی، عمران خان کے اوپر اعتماد پلس ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ جو کہ اپوزیشن کے ہیں وہ بھی وزیر اعظم کے اوپر اپنا اعتماد کا اظہار کریں گے۔ عوامی فورمز پر بھی ان کو شکست ہوئی، ڈی آئی خان میں ان کو شکست فاش ہوئی، پی ڈی ایم پاش ہوئی۔ انہوں نے جلسے کر کے دیکھے فلاپ ہوئے، انہوں نے مارچ کر کے دیکھا فلاپ ہوئے، ان کے استعفے بنے لطیفے۔ اب عدم اعتماد کی جو باتیں کرتے ہیں اس میں بھی یہ پہلے ناکام ہو چکے ہیں۔ ہر میدان میں ہمارے اتحادیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کو ہم صرف یہی کہیں گے کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال رابطہ ممکن نہیں۔ مطلوبہ نمبر آپ نے ڈائل کرنا ہے 2 سال کے بعد، اور مطلوبہ نمبر کس کا ہے؟ مطلوبہ نمبر ہے جنرل الیکشن کا۔ ایک بار پھر آپ کو شکست ہوگی۔ اور یہاں آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے۔ حکومت کی تحریک عدم اعتماد کو کلین بولڈ کرنے کی تیاری، اتحادی جماعتوں کو پکا کرنے کے لیے مزید وزارتیں دینے کا پلان بنا لیا۔ وفاقی کابینہ میں توسیع کے اس فیصلے کی تفصیلات جانتے ہیں ہیڈ آف انویسٹیگیشن یونٹ سماج زاہد گشکوری سے۔ زاہد گشکوری، یہ نمبرز کی پچ کے اوپر کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ کس طرح سے عدم اعتماد کو کلین بولڈ کرنے جا رہی ہے حکومت؟ جی، ہمیں اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ کچھ نئے وزراء کو شامل کیا جائے کابینہ میں، اور اس کا وزیر اعظم کی یہ ایک ریکارڈ کابینہ کا نمبر ہوگا، 59 تک پہنچ جائے گا۔ کم از کم 3 نئے ارکان شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور 2 کابینہ کے ممبر نے اس بات کی کنفرمیشن دی ہے سما ٹی وی کو کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اس کا کابینہ کو بڑھایا جائے، اور اس میں زیادہ تر جو تعداد ہوگی نئے ممبران کی وہ ان کے الائز پارٹی سے ہوگی، کیونکہ وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ ان کا رول کیبنٹ میں ہونا چاہیے۔
कि हमें सोर्सेज ने बताया है कि फैसला कर लिया गया है काबीना को बढ़ाने का। लेकिन जाहिद गुशकोरी, यहाँ पर ये एक बहुत ही अहम मामला है कि अब हुकूमत किस तरह से तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेगी। इस हवाले से आप बड़ी खबर लेके आए, बहुत शुक्रिया आपका। नंबर 1 क्यों आया? मुराद सईद सफाई देने कैमरों के सामने बैठ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी परफॉर्मेंस पर बात नहीं की गई बल्कि गलीज तबसरे किए गए। जावेद लतीफ ने तो उनके अहल खाना से मुताल्लिक भी गलीज गुफ्तगू की। अब्दुल कादिर पटेल, हाफिज हमदुल्ला, राना सनाउल्लाह, इन्होंने इंतहाई गैर इखलाकी बातें की। ये पार्लिमान और ये सियासत, ये इनकी जागीर है। यहाँ पे वडेरे आ सकते हैं, यहाँ पे जागीरदार आ सकते हैं, या इनकी औलादें आ सकती है। आप जैसा मेरे जैसा नौजवान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो यकीनन इनकी नजर में किसी गैर अखलाकी ताल्लुक की बुनियाद पे आप यहाँ पे पहुँचे। तबसीरा मेरे ऊपर हो रहा है गलीज गुफ्तगू के साथ। किसी ने नहीं पढ़ी कि 100 डेज में जो परफॉर्म किया, फेडरल मिनिस्टर बना, कभी कादिर पटेल, कभी आगा रफीउल्ला, कभी हमदुल्ला, कभी राना सनाउल्लाह, इनको उठा के मेरे बारे में गलीज किस्म की गुफ्तगू की जाती है। एक जावेद लतीफ नामी शख्स को उठा के मेरे घर की खवातीन, मेरे बहनों के ऊपर गलीज किस्म की गुफ्तगू की जाती है। मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, ये कैंपेन, ये मुहिम किसी मुराद सईद को कोने में खामोश करके बिठाने के लिए नहीं हो रही, बल्कि आपको ये बताने के लिए हो रही कि आपकी इतनी औकात ही नहीं है कि आप हमारे बराबर बैठ सके। मैंने अपना कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार किया। तरीक़ेकार क्या होना चाहिए था उसके आगे वो इदारा बेहतर समझता है, उनका मैंडेट है, वो उसकी अंदाज से। और अब बात करते हैं मोहसिन बेग की, जिनकी अहलिया ने अपने शोहर के खिलाफ दर्ज दोनों मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। बेटा लापता होने की भी शिकायत की। दरखास्तों पर समाअत कल होगी। इस्लामाबाद से असलम खोकर की रिपोर्ट। गिरफ्तार तज्जियाकार मोहसिन बेग की अहलिया ने शौहर पर FIA लाहौर और थाना मरगला में दर्ज मुकदमात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अलग अलग दायर दरख्वास्तों में ये भी कहा कि वक़ुआ के बाद से उनका बेटा लापता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों दरख्वास्तों की समाअत जुमा के दिन मुकर्रर कर दी। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तज्जियाकार मोहसिन बेग के घर से गिरफ्तार 2 मुल्ज़िमान इशफाक और जुल्फ़कार पेश कर दिए गए। अदालत ने वकील की इस्तदा पर मुल्ज़िम मोहसिन बेग से कौंसल और अहलिया को मिलने की इजाज़त दे दी। वकील ने दावा किया कि मोहसिन बेग का बेटा भी गिरफ्तार है, उसको पुलिस ने पेश नहीं किया, जिस पर SHO मारगला ने अदालत को बताया कि मोहसिन बेग के बेटे को हमने गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस हुकाम ने वक़ुआ से मुतालिक तफ्तीश और असला बरामद करने के लिए इशफाक और जुल्फ़कार के 3 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की। मुल्ज़िमान के वकील ने मुखालफत की, लेकिन बात ना बनी। अदालत ने दोनों का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। और एक हार होती है, कैसी हार होती है। ऐवान बाला में एक बार फिर अपोजिशन को अक्सरियत के बावजूद शिकस्त का सामना करना पड़ा। हुकूमत 3 बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई। वोट बराबर हुए तो एक बार फिर सादिक संजरानी ने अपना वोट हुकूमती पलड़े में डाल दिया। उस्मान खान की रिपोर्ट। अपोजिशन अपने होम ग्राउंड सेनेट में फिर शिकस्त खा गई। हुकूमत ने कानून साजी की बाजी मार ली। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बिल मंजूर करा ली। अपोजिशन ने वॉकआउट किया तो हुकूमत ने उसे पावर प्ले समझकर खूब फायदा उठाया। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बिल के लिए तहरीक पेश की तो रायशुमारी में हुकूमत और अपोजिशन का मैच 29-29 वोटों से बराबर हो गया। गवर्नमेंट साइड 29, अपोजिशन 29। फिर मुसीबत चेयर पे आ चुकी है। चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट हुकूमत के पलड़े में डालकर बिल मंजूर करा दिया। अपोजिशन की गैर संजीदगी पर हुकूमती अरकान को भी लफ्जों के निश्तर चलाने का मौका मिल गया। अगर इनको कोई ख्याल है कि इनके पास ऐसे कोई अददी कोई ऐसा कुव्वत मौजूद है जिससे ये अदम एतमाद ला सकते हैं, तो सेनेट में जहां वाकई अददी एतबार से वो ज़्यादा हैं अपोजिशन वाले, जब वहां पे कुछ अपना नहीं कर पा रहे तो कहीं और किसी और ऐवान में, किसी सूबे में वो क्या कर सकेंगे। चेयरमैन सेनेट ने आइलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक 2 बिल्स मुअख्खर किए। कुछ देर बाद वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने बिल दोबारा पेश किए तो अपोजिशन ने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। यूं हुकूमत को फ्री हिट मिली तो दोनों बिल मंजूर करा लिए। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने अपोजिशन को निशाने पर ले लिया। कहा, सेनेट में आज फिर अपोजिशन को शिकस्त हुई, ये हुकूमत को नहीं एक दूसरे को गिराएंगे। साथ ही खबरदार कर दिया कि सियासी मैदान में मुकाबला करें, घर में ना घुसें, वरना कानून हरकत में आएगा। ये हुकूमत नहीं गिराएंगे, अपोजिशन को गिराएगी। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो लड़ाई है, ये नंबर 1 आने की तो लड़ाई नहीं है, ये दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। जिनके अपने 30 35 अराकीन जो है वो गायब हो जाते हैं हर बिल के मौका पर, वो इनके ऊपर अदम एतमाद नहीं है तो और क्या है। ये अपोजिशन एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद कर रही है।
ब्लैक मेलर्स का एक टोला है। पार्टी नंबर 1 है, इनका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है वो आना चाहिए। किरदार कशी के ऊपर बड़ी बातें करते हैं कि बीबी शहीद का क्या कसूर था जिनके बारे में ये किरदार कशी करते थे, नुसरत भुट्टो का क्या कसूर था जिनके बारे में ये किरदार कशी करते थे, और मरियम सफदर का उन लोगों की आके हमायत करना जो लोग ट्विटर के ऊपर खातून अव्वल के मुतलका या प्राइम मिनिस्टर के मुतलका गंदे गलीज ट्रेंड्स चलाते हैं, उनकी हमायत आके मरियम सफदर करती हैं कि आप उतना ही करें जितना आप जो है वो बर्दाश्त कर सकते हो। इनको मैं तनबीह करना चाहता हूँ कि ऐसे जो ओछे हथकंडे हैं उन हथकंडों से जो है वो बाज रहें। सियासत है, सियासी मैदान के अंदर आके मुकाबला करें। लीगी रहनुमा की बात करते हैं। अदम एतमाद की तहरीक जरूर कामयाब होगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल बहुत पुरएतमाद, कहा इमरान खान मुल्क को बंद गली में ले आए हैं जिससे रियासत को निकलना होगा। जो मसाइल का बायस बन जाए सिस्टम उसे फ्लैश कर देता है। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी तो मुझे यकीन है कामयाब होगी। इमरान नियाजी पाकिस्तान को एक बंद गली में ले आए हैं। रियासत ने इस बंद गली से निकलना है। पाकिस्तान की तरक्की और इमरान खान एक दूसरे की जिद बन गए हैं, और जब कोई शख्स पार्ट ऑफ सोल्यूशन की बजाय पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बन जाए तो फिर सिस्टम उसे फ्लश आउट कर देता है। ये बात इमटेरियल है कि वो नो कॉन्फिडेंस से जाएंगे या एहतजाजी तहरीक से जाएंगे। होमवर्क मुकम्मल होगा, इत्तफाक राय के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन को पेश करेगी। मैं हुकूमत की हलीफ जमातों से ज़रूर कहूँगा, क्या आपको पाकिस्तानी अवाम की चीखें सुनाई दे रही हैं? इस मुल्क को अवाम की उमंगों के मुताबिक चलाएं। पाकिस्तान 10 सालों के अंदर एक जन्नत बन सकता है, लेकिन अगर हमने इस मुल्क से वही खेल खेले जो 70 साल से खेल रहे हैं तो ये मुल्क खुदा ना खास्ता खाना जंगी की तरफ जा सकता है। बात करेंगे एवनफील्ड रेफरेंस की, जिसमें सजा के खिलाफ मरियम नवाज की अपीलों की समाअत हुई। नैब के नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैयारी के लिए 21 मार्च तक तारीख ले गए। समाअत के दौरान इरफान कादिर और सरकारी वकील आपस में उलझते रहे। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एवनफील्ड अपीलों में नैब के नए प्रोसिक्यूटर अजहर सदीक ने दबंग एंट्री दी। पहले अदालत से अपनी पसंद की अगली तारीख ली, फिर केस की तारीख में पहली बार नैब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर गए। मैं कभी कोई पहल नहीं करूंगा, अगर वो बात बाहर आके करेंगे तो जो अंदर बात होगी उसका जवाब देना बड़ा जरूरी है। इस केस के अंदर आपको साबित करेंगे हम कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। नैब के नए प्रोसिक्यूटर आए तो मरियम नवाज के पुराने वकील अमजद परवेज एडवोकेट की भी वापसी हुई। उन्होंने नैब कानून में 30 दिन में फैसले का नुक्ता उठाया तो जस्टिस आमिर फारूक ने याद दिला दिया, अमजद साहब आप बीमार थे, कई 30 दिन आए और गुजर गए, आपकी जगह इरफान कादिर आए तो उन्हें मोहलत दी थी। नैब के नए प्रोसिक्यूटर को भी वक्त दे रहे हैं। कमरा अदालत में वकला और बाहर मरियम नवाज ने नैब के इल्तवा मांगने पर तनकीद की। जब सहाफियों ने उन्हें तवील मोहलत के लिए दरखास्तें दायर करना याद दिलाया तो साफ मुकर गयी। वो मैंने इसलिए लिया कि ताकि मुकदमा आगे चले, और मुझे कोई डिले की जरूरत नहीं है भाई, इसलिए कि मेरा केस सिक्का बंद है, माशाल्लाह एयर टाइट है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर अजहर सदीक ने कहा, ऐसा नहीं कि ये केस सिर्फ एक दस्तावेज पर बनाया गया, मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर बोले वो सारा रिकॉर्ड गैर मुतलका है। इस पर वकला के दरमियान तल्ख कलामी हुई तो अदालत ने दोनों को आपस में बात करने से रोक दिया और समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी। पहले ये अजब माजरा जानिए, दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। लीगी नायब सदर मरियम नवाज नैब प्रोसिक्यूटर की छुट्टी पर तनकीद करती हैं, लेकिन जब शरीफ खानदान की बीमारियों पर सवाल किया जाए तो बुरा मान जाती हैं। इमरान खान साहब, जो स्टैंडर्ड आप अपने लिए सेट करते हैं वही स्टैंडर्ड बराए मेहरबानी आप दूसरों के लिए भी सेट करें, तो आपकी बात में कोई वजन होगा। इमरान खान को डबल स्टैंडर्ड का ताना देने वाली मरियम नवाज क्या खुद भी दोहरे मेयार रखती हैं? नैब का वकील कोरोना की वजह से अदालत में पेश ना हो सका तो मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज बोली, जब आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आपको कोरोना भी होगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। शरीफ खानदान की बीमारियों पर मुखालिफिन तनकीद किया करते थे तो मरियम नवाज कहती थीं, जब उनका इलाज मुकम्मल होगा वो वापस आएंगे। हुकूमत इसके ऊपर सियासत कर रही है। मरियम नवाज के चाचा शहबाज शरीफ कई बार बीमारियों का बताकर अदालतों में पेशी से छुट्टी ले चुके हैं, क्या ये उनके बारे में भी कहेंगी? जब आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आपको कोरोना भी होगा।
मरियम नवाज के वालिद, उनके भाई और दीगर रिश्तेदार इश्तिहारी मुल्जिमान ठहराए जा चुके हैं। अदालतें बुलाती हैं, वो नहीं आते, क्या उनके बारे में भी ये बात करेंगी? सबूत दे अगर है तो, और अगर सबूत नहीं है तो इस केस को और ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। मरियम नवाज साहिबा, प्लीज बताएं कि आपके नजदीक डबल स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड क्या है? मैंने इशारा करना था, कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एफआईए ने शहबाज शरीफ के खिलाफ केस तैयार कर लिया। एफआईए ने इसहाक डार का इकबाली बयान शहबाज शरीफ के खिलाफ बतौर गवाही पेश करने का फैसला किया है। एफआईए के चालान में कहा गया है कि इसहाक डार ने शहबाज शरीफ के खिलाफ इकबाली बयान दिया। पैनमा जीआईटी रिपोर्ट में भी इसहाक डार के बयान को बतौर सबूत पेश किया गया। इसहाक डार के बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला बेनामी अकाउंट खोला जिसमें $18 मिलियन की रकम जमा करवाई गई। चालान में बताया गया इसहाक डार का इकबाली बयान आज तक किसी अदालती फॉरम से वापस नहीं लिया गया। तहरीक इंसाफ सिंध, इख्तिलाफात यहाँ शदीद होते जा रहे हैं। अली जैदी की जानिब से की गई नामजदगियों के 24 घंटे बाद इस्तीफों की लाइन लगने लगी। पीटीआई के सीनियर नायब सदर हलीम आदिल शेख ने भी इस्तीफा दे दिया। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब भी यहाँ होंगे। 26 तारीख को गोटकी से मार्च कर रही है। मुखालफिन के खिलाफ अभी बारात निकली भी ना थी कि तहरीक इंसाफ सिंध में इख्तिलाफात खुलकर सामने आने लगे। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी की जानिब से ओहदों की नामजदगियों को 24 घंटे भी ना गुजरे थे कि इस्तीफे आने लगे। हलीम आदिल शेख ने सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के ओहदे पर काम करते रहेंगे। एक और सीनियर नायब सदर पीटीआई सिंध ताहिर शाह ने भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। गवर्नर सिंध के मुशीर अली जुनेजो ने भी पीटीआई सिंध के नायब सदर के ओहदे का इस्तीफा भेज दिया है। मेरी तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, मैंने तो मसरूफियत है, चूंकि मेरा बहुत बड़ा काम है मेरे ऊपर ना। छोटी मोटी रिजर्वेशन शायद हमारे साथियों की हो तो उसको मेरा ख्याल है कि सेटल कर लिया जाएगा। पीटीआई मीरपुर खास के जनरल सेक्रेटरी अली अकबर पल्ली भी मुस्ताफी हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान के दौर में जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है। उन्होंने तासुब से पाक एहतिसाब की जरूरत पर जोर दिया। अरशद अली की रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट बार में वकला से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोई मुल्क एक फेयर जुडिशल सिस्टम के बगैर कायम नहीं रह सकता। हम एक पार्टी या फैमिली के लिए नहीं बल्कि एक निजाम की बहाली के लिए लड़ रहे हैं। Pakistan is not transitioning towards democracy. Pakistan is transitioning away from democracy. We are transitioning towards authoritarianism and dictatorships and we must fight this. बिलावल भुट्टो का कहना था कि आजाद अदलिया और कानून के बगैर जमहूरियत पनप नहीं सकती। Democracy which could not function until we had an independent judiciary that was run on the basis of rule of law. For me, the Chief Justice of Pakistan should be deciding constitutional issues, not samosa ki कीमत, चीनी की कीमत। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी के वकला विंग की जानिब से जना कैब भी पहनाई गई। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। तो लाहौर हाई कोर्ट बार की ये तकरीब थी। इसके दौरान वकला रहनुमाओं ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को जिना कैप तोहफे में दी। तोहफा उन्हें पसंद तो बहुत आया लेकिन शायद बिलावल के सर पर पूरा ना आया। कैप जिना की लेकिन नारे भुट्टो के। बार की तकरीब में वकला रहनुमाओं ने बिलावल को जिना कैप तोहफे में दी लेकिन नारे सियासी लगाए। तोहफा पसंद तो आया लेकिन शायद बिलावल के सर पर पूरा न आया। बिलावल ने अगले ही लम्हे कैप उतार दी। जिना कैप बतौर अपोजिशन लीडर इमरान खान को भी कई बार तोहफे में मिल चुकी है।
शहबाज शरीफ जिना कैप का इस्तेमाल जरा वक्रे अंदाज में करते हैं, वो टोपी को तिरछा पहनते हैं। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ भी अहम मौक़ों पर जिना कैप को अपने सरों की जीनत बना चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने पहली बार पाकिस्तान का दौरा किया और अहम मुलाकातें की। कोरोना से बचाव के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली हैरान कुन करार दी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुसूसी तकरीब में हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा किया। वजीर आजम ने एक और तारीख रकम कर दी। इमरान खान की खुसूसी दावत पर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सरबरा और बानी माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स का पहला एक रोजा दौरा पाकिस्तान। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब हुई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड अता किया। इससे पहले वजीर आजम ने बिल गेट्स के एजाज में जोहराना दिया। 1-on-1 मुलाकात हुई। इमरान खान ने बरादर हमसाया मुल्क का मसला उठा दिया। कहा दुनिया इंसानी बहरान के दहाने पर खड़े 40 मिलियन अफगानों की मदद करे। बिल गेट्स ने भी तायीद कर दी। कहा अफगानिस्तान में हुकूमत कोई भी हो, सबके लिए इंसानी जरूरियात का ख्याल रखना जरूरी है। कौमी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेशनल पोलियो टास्क फोर्स इजलास में भी बिल गेट्स की शिरकत। बताया गया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा गुज़श्ता 13 माह के दौरान पोलियो का एक भी केस सामने नहीं आया। बिल गेट्स ने पाकिस्तान का अज़्म मुतासिर कुन करार दिया। वैक्सीनेशन टीमों के शहीद वर्कर्स को खिराज अकीदत भी पेश किया। बिल गेट्स NCOC हेडक्वार्टर्स में कोरोना से मुतालिक इजलास में भी पहुंचे। आलमी वबा से निमटने में पाकिस्तान के किरदार और हिकमत अमली को हैरत अंगेज और काबिल सताइश करार दिया। इंतहा पसंदी उरूज पर और रवादारी किसी खाई में दिखाई देती है। हम भारत की बात कर रहे हैं। अजान दी जाएगी तो ये गाने बजाएंगे। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमान दुश्मनी में सारी हदें फलांग डाली। मसाजिद में लाउड स्पीकर के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। सर विविन रिचर्ड्स कहते हैं PSL बेहतरीन लीग है, क्रिकेट का मयार बहुत बेहतर है। I believe it's one of the highly contested leagues, T20 leagues that you can find. But that is why I'm here. It is just a joy to see such talent on show. Well, I've always enjoyed the guys, who would have had a little bit of experience in red ball cricket. When you look at maybe a Joe Root, you look at all the guys, who would have participated at red ball level. I see Baba as well. And even though Baba doesn't look like he's hurting the bowlers, certainly I'm telling you, you ask the bowlers, what I've always enjoyed about coming to this part of the world, it's just the support which you get from the fans. अहम मामला बैरून मुल्क 3 पाकिस्तानी मिशन कौमी खजाने के लिए भारी नुकसान का बाइस बन गए। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे शकील अहमद। जी शकील। देखिए, पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में वजारत खारजा उमूर की ऑडिट रिपोर्ट 2019-20 का जायजा लिया जा रहा था और इस दौरान इस बात का इंकिशाफ हुआ कि 3 ऐसे पाकिस्तानी मिशंस हैं जिनमें सिंगापुर, बोस्निया और अल्जेरिया शामिल हैं। अब वहाँ पे जो पाकिस्तानी मिशंस हैं उन्होंने किराए की बिल्डिंग्स जो हैं वो ली सफ़ीरों के लिए, लेकिन अगले 1 साल तक सफ़ीरों का तकर्रुर ना हो सका। लेकिन 9 माह तक उनका किराया और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हैं वो अदा किए गए, जिससे कौमी ख़जाने को तकरीबन 6 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। और PSC ने इस बात पर वजारत फॉरेन ऑफिस की सरजनिश भी की और जिस पर यह बताया गया कि आइंदा से 3 माह तक जो है बिल्डिंग वो किराए पे ली जाएंगी। अगर सफ़ीर का तकर्रुर नहीं होता तो वो बिल्डिंग्स वापस की जाएंगी। एक और चीज़ सामने आई कि 1 अरब 40 करोड़ रुपए के सरप्लस फंड जो हैं वो 9 पाकिस्तानी मिशंस ने अपने पास रखे, बजाय इसके कि वो किसी मुनाफा बख्श स्कीम में या बैंक में जमा कराए जाते, वो इजाफी फंड्स मिशन ने अपने पास रखे। इससे भी कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ और PSC ने हिदायत की कि इस हवाले से बाकायदा क़वानीन वज़ा किए जाएँ और जो सरप्लस फंड्स हैं वो बैंकों में या किसी स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट किए जाएँ। जी शकील, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने 8 मार्च को औरत मार्च पर पाबंदी के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। इस दिन को आलमी यौम हिजाब मनाने की तजवीज़ दे दी। औरत मार्च नामंजूर। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर ने 8 मार्च को औरत मार्च पर पाबंदी आयद करने के लिए वजीर आजम को खत लिख दिया। नूरुल हक कादरी ने इस दिन आलमी यौम हिजाब मनाने की तजवीज दी है। प्रोग्राम 7 से 8 में कहा हिजाब का मजाक उड़ाने की इजाजत ना दी जाए। औरत मार्च के नाम पर जो अखलाक पाख्तगी और जो हमारी रिवायात का मजाक उड़ाया जाता है उसकी मैंने मुखालफत कर दी है। आलमे दीन मुफ्ती जुबैर ने नूरुल हक कादरी के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। मोहतरम जनाब वजीर आजम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस औरत मार्च पर पाबंदी लगाएं। साफ, वाज़े,
दो टोक लफ्जों के अंदर मेरी ये डिमांड है और ये मुतालबा है। मैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल का मेंबर हूँ, मैं इंशाल्लाह कौंसिल में भी ये बात उठाऊंगा। अदाकारा इफ़्फ़त उमर औरत मार्च की हिमायत में डटी रही। मैं तो एक्चुअली देख रही हूँ कि इस हुकूमत की जो परफॉर्मेंस जा रही है उसको छुपाने के लिए, उसको साइड पे करने के लिए नॉन इश्यूज पे बात कर रहे हैं। ये उन्होंने बारहा ये कहा है कि औरत की तजलील है, वहाँ पे फहाशी होती है। मैं जानना चाहूंगी कि वहाँ पे ऐसी कौन सी फहाशी हुई है। इफ़्फ़त उमर ने कहा पूरी दुनिया में औरतें अपने हुकूक मांग रही हैं, हमें भी हमारा हक दिया जाए। लाहौर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मुसलसल खतरनाक हद से कहीं ऊपर है, जिसके जिम्मेदार ये नन्हे ज़रात हैं जिन्हें पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक वो ज़रात हैं जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये खुदबीन से नजर आते हैं। इन्हें PM2.5 कहा जाता है, यानी इनका हुजम 2.5 माइक्रोमीटर या इससे भी कम होता है। एक और तरह से देखें तो 1 सेंटीमीटर यानी हमारे नाखून जितनी जगह पर 4000 PM2 ज़रात समा सकते हैं। ये ज़रात नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों और दीगर जहरीले केमिकलों से बने होते हैं। सांस के साथ ये फेफड़ों में जाकर वहाँ जज्ब हो जाते हैं और खून में शामिल हो जाते हैं, जिससे सांस, गले और दीगर बीमारियां पैदा होती हैं। आलमी इदारा सेहत की गाइडलाइन के मुताबिक 1 मकाब मीटर में इन ज़रात की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 25 होनी चाहिए, लेकिन लाहौर, कराची और दीगर आलूदा शहरों में इनकी तादाद 200 से भी बढ़ जाती है। बल्कि सर्दी में जब स्मोक बढ़ जाए तो इनकी तादाद 300 से भी ज़्यादा हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर लाहौर, कराची और दीगर शहरों में PM2 की मिकदार WHO की मुजवजा सतह पर लाई जाए तो औसत उम्र में 5 साल तक का इजाफा हो सकता है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।